Hello everyone. Today we are going to study about chemical coordination and integration. So in this chapter we will see how the chemicals are coordinating in our body, and these chemicals are called hormones, which are secreted by our endocrine glands. Right? So in the previous chapter you have seen that how neurons are coordinating with each other. ठीक है, देखा था आपने कि न्यूरॉन्स कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि उनका जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज वेरी वेरी फास्ट, राइट। बहुत तेजी से वो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. Okay, so here in the vesicles neurotransmitters are filled. This neurotransmitters comes out and it is received by the next neuron. ठीक है, यहाँ पे ये receptors होते हैं which are going to receive the neurotransmitter. Okay, so here the neurotransmitter which I am talking of is the acetylcholine, right? So now here suppose this is our muscle. Okay, we are talking of the skeletal muscle. यहाँ पे ये acetylcholine जो है रिलीज हो जाएगा and this is received by the this receptor present on the muscles. ठीक है, यहाँ पे muscles पे जो receptors हैं वो इसको receive कर लेंगे and this whatever the function means they want to contract or expand, that will be happened, right? So this is how neurons are coordinating with each other, and you can see this is very fast, this is very rapid, बहुत तेजी से ये मैसेज जाता है, but this is for short time, short duration के लिए होता है. Okay, so this you have seen in neural coordination. Now you know that neurotransmitters are also chemicals, whereas the hormones are also chemicals. ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो hormones की बात करेंगे which are secreted by your endocrine glands, these are also the chemicals. अब ये जो hormones हैं इनका जो मैसेज जाता है that is not rapid, बहुत जल्दी नहीं होता, okay, as compared to the neural coordination, and but it is for long duration. Okay, it is for long duration, it is slow but it is for long duration, right? So as I said that neurotransmitters are also chemicals whereas the hormones भी chemicals होते हैं. तो डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो ये जो chemicals होते हैं neurotransmitters, they are secreted between the two neurons and this gap is called synapse. ठीक है, एंड दिस इज द गैप कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि न्यूरॉन और मसल के बीच में जो गैप है इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, right? Whereas you will observe that the hormones are secreted by any gland or any cell which act as a gland in the blood. ठीक है, this is the blood vessel and in this blood is flowing. So here you will see that any cell, this is a cell which is acting as a gland and they are going to secrete the hormones in the blood. Okay, so this is what the difference between the neural coordination and the coordination of the endocrine gland by the hormones, right? And you know that yes, you know that these neurons, we can say nervous system, your nervous system regulate endocrine system and vice versa. Means जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करेगा और जो एंडोक्राइन सिस्टम है इज गोइंग टू रेगुलेट द नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल द हाइपोथैलेमस. ओके, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो you have seen that the hypothalamus is going to control the pituitary gland. So this is the gland and this is a part of nervous system. Okay, so here you can see the nervous system is controlling the endocrine system. Now vice versa also happens, means endocrine system which are secreting the hormones, these hormones are regulating the nervous system, means they are controlling your emotions, your aggression, your behavior. Okay, so they both regulate each other, right?
And as a difference we have seen neurotransmitter और hormones में क्या difference है. Now move on to the next one, that is the difference between the exocrine and the endocrine gland. So first difference which you have seen already, that is the exocrine glands are the duct glands, whereas endocrine glands are the ductless glands. Okay, this is the difference, basic difference you have already know about. So exocrine glands में ducts होती हैं. So say for example the glands which are present in the stomach. So इसमें जो inner membrane है that has a foldings. Okay, these are nothing but the glands. ये हैं आपके gastric glands which are going to secrete the enzymes and your acid. Okay, like HCl, pepsinogen. Okay, so these are the glands. Now if you observe this gland, you will see that there is a duct here. Okay, this is the gland and these are the cells which are going to secrete the enzymes, and this is the duct through which this hormones comes out. Okay, यहाँ से ये hormones बाहर आ जाएंगे. So what you have seen that these are the glands which have the ducts, whereas endocrine glands are ductless glands. ये सबसे basic difference है. यानी कि आप देखेंगे जो हमारा pituitary gland है, any gland we will take to study. देखिए इनका जो secretion है pituitary gland का, ये anterior lobe है, this is the posterior lobe. आगे वाली लोब को anterior बोलते हैं, posterior मतलब पीछे वाली लोब. तो anterior lobe से जो भी secretion होगा that will go in the blood. ठीक है, यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, these hormones will enter in the blood. Okay, without any duct. So this gland is not having any duct. Without duct, it is secreting the hormone directly in the bloodstream. Whereas the exocrine glands secrete their hormones at the target site. Not hormone, they actually secrete the enzymes. They secrete enzymes, mucus, and you can say tears, sweat, right, oil glands. ये सारे क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स. ठीक है. सो as I said, exocrine glands are the duct glands and they are going to secrete enzyme, mucus, tears, sweat and whatever other secretion is there in your body. देखिए glands का काम ही होता है secrete करना. Glands are used for secretion. They are going to secrete something in our body. हो सकता है एक सेल secrete कर रही है कुछ, और हो सकता है एक बड़ा gland हो. ठीक है. So ये जो exocrine glands होते हैं, इनका secretion जो होता है, it is on the surface. ठीक है, इनका सरफेस पे सिक्रेशन होता है. जैसे कि आप अगर अपनी स्किन की बात करें, स्किन पे भी हमारे जो है स्किन का अगर अंदर आप विजिट करेंगे, अंदर देखेंगे, तो यू विल सी देयर आर ग्लैंड्स. ओके, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं विच पोर देयर सिक्रेशन आउट. ओके, सरफेस पे सिक्रेशन को पोर करते हैं. और ये भी तो आपकी सरफेस ही है ना, ये अंदर सरफेस है, बट इट इज ऑल्सो द सरफेस. सो दे आर गोइंग टू पोर देयर सिक्रेशन ऑन द सरफेस. ओके, whereas endocrine glands pour their secretion in the blood, and this blood is going to carry the hormones to the target site. अब target site इसकी endocrine glands की जरूरी नहीं है पास में ही हो. Okay, it can be far from where the hormones are produced. Suppose pituitary gland जो है hormone produce कर रहा है prolactin. ठीक है, ये hormones क्या होगा, memory glands को stimulate करेगा to secrete milk. Okay, and you can see the distance between these two. So target site जो होती है, that is far from where the hormones are produced in the endocrine glands, isn't it? Then next you will see which is the exocrine gland, largest one. Largest exocrine gland in our body is the liver, and the smallest one is the goblet cell. Goblet cell आपकी प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, इन योर थ्रोट, विच आर गोइंग टू सिक्रेट दी म्यूकस. ठीक है, ये म्यूकस सिक्रेट करेंगी, और ये जो है यूनिसेलुलर होती है, एक ही सेल की होती है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड. नाउ इफ यू सी द एंडोक्राइन वन, लार्जेस्ट आपका जो है एंडोक्राइन जो लार्जेस्ट है, दैट इज द थाइमस, सॉरी दैट इज द थायराइड, एंड द स्मॉलेस्ट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है.
सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्लैंड्स. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं और बाकी जो भी सिक्रीशन है हमारी बॉडी में दैट इज थ्रू द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स वेयर एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द डक्ट्स ग्लैंड्स. ठीक है, इनमें डक्ट्स होती है. दिस इज द डक्ट. नाउ मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन्स. सो हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट. ठीक है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, न्यूट्रिएंट नहीं होते. लेकिन न्यूट्रिएंट क्या होता है? समथिंग विच वी इंजेस्ट. ठीक है, बाहर से हम लेते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में बनते हैं और वो हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. अगर वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे होते तो हमारी कोई भी सेल जिसको न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती. बट ऐसा नहीं होता है हार्मोन्स के केस में. हार्मोन्स क्या होते हैं? वो टारगेट साइट पे ही जाते हैं और टारगेट साइट पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं. अगर वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं तो दिस हार्मोन्स गेट अटैच्ड टू दैट target site. Okay, and they are produced in trace amount. Okay, बहुत ही कम, यानी कि कैसे नैनोग्राम्स they are produced. Okay, बहुत ही कम हार्मोन्स की जरूरत है. ज्यादा हार्मोन्स क्या है? हमारी बॉडी के फंक्शंस को गड़बड़ा सकते हैं, मतलब खराब कर सकते हैं. एक्ट एज अ इंटरसेल्यूलर मैसेंजर. इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, ठीक है, यानी कि सेल, ये एक सेल है, यहाँ पे सेल है. So they are going to send message from this cell to this cell. Intercellular messenger है. Okay, intra मतलब इसी सेल को मैसेज आ रहा है. Okay, so here you will see that they act as a intercellular messengers. So this is the definition, very important from examination point. Endocrinology क्या होता है? Endocrinology होती है study of endocrine glands and the hormones secreted by them. यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करना और उनसे जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनकी स्टडी करना इज कॉल्ड एंडोक्रिनोलॉजी. ओके, इज इट क्लियर? सो हार्मोन्स की डेफिनेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट. बहुत कम अमाउंट में मींस प्रोड्यूस होते हैं एंड दे एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स. राइट? Now here is the endocrine system and one by one we will see their location. So pineal gland, pituitary gland and your thyroid, hypothalamus. These three glands are located in your brain. ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स ब्रेन में लोकेटेड है. यू कैन सी हियर पीनियल ग्लैंड, दिस इज द पीनियल ग्लैंड, पीछे की साइड में है. पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस जो है थोड़ा आगे की साइड है, ये आपको हाइपोथैलेमस है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, सो दीज थ्री ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. नाउ नेक्स्ट इज योर थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड आपका जो ट्रेकिया है दैट इज द विंड पाइप. ठीक है, दिस इज द ट्रेकिया. ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है. दिस इज द थायराइड ग्लैंड. ओके, एंड इट इज बिलो द लैरिंक्स. यहाँ पे आपका ये लैरिंक्स है, दैट इज द वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स के नीचे ट्रेकिया के ऊपर थायराइड प्रेजेंट होता है. अगर थायराइड को बैक साइड से व्यू करेंगे, पीछे की तरफ से अगर आप देखेंगे इसको, सो यू विल फाउंड, यहाँ तक ये सपोज ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 स्मॉल, लेट मी टेक अनदर कलर. Yeah, here 4 small parathyroid glands are present. ठीक है, these are the parathyroid glands. Right, so this is located here in the trachea. Okay, trachea के ऊपर ये located है. थायराइड आगे की तरफ है, पैराथायराइड पीछे की तरफ है. 4 small dot-like structure you can see that are parathyroid glands. Okay, now move on to the thymus. ये जो thymus है, it is located above the heart. This is your heart. हार्ट के ऊपर की तरफ thymus gland होता है. This glands degenerate as we mature. ठीक है, जैसे ही हम ओल्ड एज में आएंगे तो धीरे धीरे ये जो ग्लैंड है ये धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा. देन वी हैव पेंक्रियास. पेंक्रियास आपका दोनों तरह का काम करता है, एक्सोक्राइन भी काम करेगा और एंडोक्राइन भी काम करेगा. ठीक है,
It works as exocrine gland as well as the endocrine gland. So exocrine gland में इसका काम होता है pancreatic juice secrete करना. Okay, pancreatic juice which is helpful in your digestion. In endocrine gland, it is going to secrete insulin and glucagon. Okay. Now, this pancreas is located just behind the stomach. ओके, स्टमक के पीछे एक लीफ जैसा ग्लैंड है, वो है आपका पेंक्रियास. नाउ ऑन द टॉप ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, सॉरी ऑन द टॉप ऑफ द किडनी वी हैव एड्रिनल ग्लैंड्स. ठीक है, दे आर स्टिक टू द किडनी. दीज आर द एड्रिनल ग्लैंड्स. देन टेस्टिस इन द मेल which is present in the scrotum. Okay, a pouch-like structure is there inside which testes are placed. So testes are going to play the role of endocrine gland, right? And in female, if we talk, the ovaries which is present on the both sides of the uterus, these are the ovaries. They are also acting as an endocrine gland. ठीक है. Placenta is a temporary endocrine gland which is formed during the pregnancy. Pregnancy के टाइम पे ये बनता है and it is going to secrete estrogen and progesterone hormone which is very necessary for the baby growth. Okay, और we can say pregnancy के लिए वो बहुत ज़रूरी है जिससे कि बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ठीक से हो सके. So these are the different endocrine glands in our body. ठीक है, ये जो है मेजर हैं. कुछ सेल्स होती हैं जो भी वो भी एंडोक्राइन का काम करती हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो these are the major endocrine glands. अब आपको लोकेशन पूछी जा सकती है. तो पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. और आपके ट्रैकिया पे आपका है थायराइड एंड पैराथायराइड पीछे की तरफ. ठीक है, थाइमस हो गया हार्ट के ऊपर, पेंक्रियास हो गया एब्डोमिनल एरिया में यानी कि योर स्टमक के पीछे, एड्रिनल ग्लैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द किडनी. Okay, and your testes are located in the scrotum, okay, outside the body, hanging outside the body, and ovaries are near the uterus. Okay, and placenta is the temporary endocrine gland. Okay, so this much is clear. Now move on to the next slide. Here we will see, just a second. Right, so in the hypothalamus, okay, now we will talk about the hypothalamus which is the supermaster gland. This is the supermaster gland. ठीक है, मास्टर ग्लैंड तो आपका पिट्यूटरी है, बट सुपरमास्टर ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस है, क्योंकि यही है जो कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को. तो आप ये देख सकते हैं इस फिगर में, ये हाइपोथैलेमस है और इससे बाहर निकलता हुआ दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द डायसेफेलोन रीजन. देखिए, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है. दैट इज द फोर ब्रेन, देन योर मिड ब्रेन एंड योर हाइंड ब्रेन. ठीक है, हाइंड ब्रेन में आ गए आपके पॉन्स, मेड्यूला. ओके, फोर ब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू सेरी, हाँ यहाँ पे सेरिबेलम भी है. ठीक है, सेरिब्रम एंड डायसेफेलोन. So your hypothalamus is located in the diencephalon region. ये जो hypothalamus आपको दिख रहा है, it is located in the diencephalon region. ये जो region है, ये diencephalon region है brain का. Okay, now here when you observe the hypothalamus gland, you will find that, suppose this is the pituitary gland. This is the anterior lobe, this is the posterior lobe. Okay, यहाँ पे क्या होते हैं, posterior side में directly neurons enter कर रहे हैं. ठीक है, so let us draw here. ठीक है, these are the neurons which is directly in contact with the posterior lobe of the pituitary. Okay, and देखिए ये वाला जो न्यूरॉन है इसको बोलेंगे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. ठीक है, ये जो है इसका जो न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. इधर बोलते इसको बोलेंगे पैरा वेंट्रिक्युलर न्यूक्लियस.
सो जो पोस्टीरियर ये दोनों का जो रोल है वो है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वाटर बैलेंस आपकी बॉडी में मेंटेन रखता है. सो इट इज गोइंग टू सिक्रीट वैसोप्रेसिन. ठीक है. पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इज गोइंग टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन. सो these are the two hormones secreted by these neurons. ठीक है, ये न्यूरॉन सिक्रीट कर रहे हैं. तो ये न्यूरॉन जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. ओके, ये है तो न्यूरॉन ही, बट यहाँ पे ये कुछ सिक्रीट कर रहे हैं. और वो सिक्रीट क्या कर रहे हैं? न्यूरॉन हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं. एंड दीज हार्मोन्स आर गोइंग इन द ब्लड. ठीक है, ये हार्मोन्स कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जो है ब्लड है. ठीक है, ये ब्लड में इट विल एंटर. ओके, सो दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज गोइंग टू स्टोर दीज हार्मोन्स. ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं ओके जिनमें ये हार्मोन्स स्टोर हो जाते हैं और जब भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में दे गेट सिक्रेटेड आउट. ओके, मीन्स दे विल flow through the blood and means recepted by the target site. Now here there is another nucleus. This nucleus is called arcuate. Okay, this is arcuate nucleus. देखिए ये जो न्यूरॉन है इट इज नॉट गोइंग इन द इंटीरियर लोब. आगे वाले लोब में ये जा नहीं रहा है. ठीक है, ये जो है इससे इट इज कनेक्टेड विद द पोर्टल सिस्टम. It is connected with the portal system. ठीक है, यहाँ पे जो है कैपिलरीज का नेटवर्क है. फिर अनदर कैपिलरीज नेटवर्क, ये अभी हम पढ़ेंगे कि होता क्या है. ठीक है, सो हियर देयर इज दिस पोर्टल सिस्टम इज कॉल्ड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. ठीक है, ये अभी हम आगे देखते हैं. पहले हमें जो मेन जो हमें पढ़ना है वो इसमें ये है कि जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ लोकेटेड है. इट इज लोकेटेड इन द डायेंसेफेलोन रीजन. देखिए पोस्टीरियर लोब से डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके न्यूरॉन्स जो है डायरेक्टली यहाँ एंटर कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू सिक्रेट वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. ठीक है, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस वैसोप्रेसिन सिक्रेट करता है वेयरएज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है. ये जो हार्मोन्स जो है स्टोर हो जाते हैं यहाँ पे सेल्स में. ओके, so now here on the anterior side जो न्यूरॉन जो हाइपोथैलेमस से जा रहा है वो एंटीरियर लोब में डायरेक्टली नहीं एंटर कर रहा है. वो छोटा न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन जो भी सिक्रेट करेगा, जो भी हार्मोन सिक्रेट करेगा, ये हार्मोन्स इस ब्लड में एंटर करेंगे. ठीक है, ये ब्लड जो है ये ब्लड लेके जाएगा एंटीरियर लोब तक. ओके, तो न्यूरॉन नहीं लेके जा रहा है. इज इट? ठीक है, अब हमें जो यहाँ पे देखना है कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है. ठीक है, ये पोर्टल सिस्टम जो आगे हमने ड्रॉ किया है, व्हाट इज दिस? राइट, सो हाइपोथैलेमस के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. अच्छा, एक और चीज, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इट इज गोइंग टू सिक्रेट रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज इनहिबिटरी हार्मोन्स. ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है. यानी कि रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जब जरूरत है बॉडी में तो वो रिलीज होंगे और जब जरूरत नहीं है तो उनको रोका जाएगा थ्रू द हाइपोथैलेमस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द पोर्टल सिस्टम. ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम होता क्या है? देखिए आप पहले हमने पढ़ा है कि सपोज दिस इज द हार्ट से आपकी एओर्टा आएगी. ठीक है, एओर्टा इज कैरिंग द ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स and this aorta is divided into arteries. ठीक है, ये arteries में डिवाइड हो गई. arteries are further divided into arterioles. right, ये arterioles में डिवाइड हो गए. now arterioles are then further divided into small very minute capillaries. ठीक है, ये आपके capillaries हैं. okay, now these capillaries यहाँ से जो है ब्लड में से ऑक्सीजन यूज हो गई. सपोज यहाँ पे मैं एक स्टमक बना देती हूँ. ये जो जा रही है कैपिलरीज इस स्टमक के ऊपर से जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले ली स्टमक ने. अब ये कैपिलरीज फर्दर क्या बनाएंगी? दे आर गोइंग टू फॉर्म वेन्यूज देन वेन. ओके, सो ये आपकी जो वेन है इट इज
going to take the blood in the heart. This vein is called vena cava. So हो क्या रहा है, देखिए arteries, जो main artery that is aorta, aorta is divided into arteries. Arteries are divided into arterioles, which forms then capillaries. Capillaries joins to form venules. Venules then form veins. Veins then form the main vein that is vena cava. ओके, तो ये आपने देखा कि जो कैपिलरी का नेटवर्क है इट इज ओनली एट वन प्लेस. ठीक है, यहाँ वेन है, यहाँ आर्टरी है, लेकिन कैपिलरी का नेटवर्क जो है एक ही जगह है. लेकिन जब हम पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं तो ये कैपिलरी का नेटवर्क है, इट इज कनेक्टिंग द टू ऑर्गन्स. ओके, अभी हम जो हाइपोफाइजियल दैट इज द सिस्टम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, सॉरी हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये कैपिलरी नेटवर्क है. ठीक है, ये आर्टरी आएगी. ओके, आर्टरियोल में डिवाइड हुई, कैपिलरीज में डिवाइड हुई. कैपिलरीज आप देख सकते हैं फिर वेन्स में डिवाइड होंगी, वेन्स फिर से कैपिलरीज बना रही है. ओके, दे आर गोइंग टू मेक द कैपिलरीज अगेन. अब यहाँ पे क्यों बना रही है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट? तो मेन बेनिफिट जो है इसका ये है कि जो हार्मोन्स आ रहे हैं यहाँ से हाइपोथैलेमस से, वो ब्लड में आ रहे हैं. अगर ये यहाँ से ब्लड चला गया हार्ट में वेन्स के थ्रू और यहाँ पे नहीं आया कैपिलरीज के थ्रू, यहाँ पे नहीं आएगा तो हार्मोन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. ठीक है, और एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है एंटीरियर पिट्यूटरी एरिया में, पिट्यूटरी ग्लैंड के. ठीक है, तो ये यहाँ पे कैपिलरी का एक और नेटवर्क बनता है. एक ये कैपिलरीज हो गई, एक ये कैपिलरीज हो गई, यहाँ पे ये आपकी हो गई वेन्स. Okay, so two capillaries network are there before it entering into the vein, that is the main vein, जो कि हार्ट को ब्लड लेके जाएगी. उससे पहले दो बार कैपिलरीज में ये ब्रेक डाउन हो गया है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल पोर्टल सिस्टम. ठीक है, अभी हम आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं. जैसे कि आपने सुना हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. तीन पोर्टल सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, हिपैटिक, हाइपोफाइजियल एंड रीनल. हाइपोफाइजियल. ठीक है, so this is the stomach and here we have the liver. ठीक है, now here what you will see in this hepatic portal system कि यहाँ पे जो capillaries का network है it is going to form the vein. Now this vein is again divided into capillaries. ये जो vein है ये फिर से डिवाइड हो गई कैपिलरीज में. बिफोर एंटरिंग इनटू द हार्ट, हार्ट में जाने से पहले ये फिर से कैपिलरीज में डिवाइड हो गई. तो आप देख सकते हैं ये कैपिलरीज इस ऑर्गन पे है और ये कैपिलरीज इस ऑर्गन पे, दे आर कनेक्टेड बाय अ वेन. ओके, अब इसका भी यूज है. देखिए, जो भी हमारी स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो भी एब्जॉर्ब होगा वो पहले लिवर में जाएगा, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो टॉक्सिन्स रिमूव होने बहुत जरूरी होते हैं. तो लिवर क्या होता है, जितने भी टॉक्सिन्स ड्रग्स वगैरह है उनको ये absorb कर लेता है. So this is also very beneficial. Okay, that is the hepatic portal system, right? Just a second. Okay, so this is the hepatic portal system. ऐसे ही रीनल पोर्टल सिस्टम होता है जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है. सो मेन जो मेरा कंसेप्ट था वो आपको बताना था कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेज ऑल दिस. सो what I want to tell you is that portal system आखिर है क्या. So you can see there is a network of two capillaries between the vein. Okay, and this is going to connect the two different organs. Now we will further move on to the next one, that is the pituitary gland. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे. उससे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये बहुत ही छोटा ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, let us label the parts.
राइट। सो जो आगे वाली लोब है दैट इज द एंटीरियर लोब। ये आगे लोब है, ये पीछे की लोब है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, आगे की तरफ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है एंटीरियर लोब हो गया, पीछे की तरफ हो गया पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफिसिस बोलते हैं, एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस बोलते हैं। हाइपो का मतलब होता है नीचे की तरफ, हाइपोफिसिस। तो ये तो हाइपोथैलेमस के भी नीचे है ना, तो हाइपोफिसिस बोलते हैं इसको। और पीछे वाली जो लोब है उसको बोलेंगे न्यूरो hypophysis. Okay, now this anterior lobe is again divided into two. देखिए आगे वाली जो लोब है वो फिर से डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। This one is the pars distalis. This is pars intermedia. And the back one is this one is the pars nervosa. ठीक है, न्यूरोहाइपोफिसिस नाम है इसका। नर्वोसा जो काम कर रहा है, एक्चुअली जो पार्ट काम कर रहा है उसे पार्स नर्वोसा बोलेंगे। यहाँ पे पार्स डिस्टलिस है, दैट इज द रीजन व्हिच इज एक्चुअली वर्किंग, इज कॉल्ड पार्स डिस्टलिस। और बीच वाली लोब है वो है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो तीन लोब में डिवाइड हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। ओके, नाउ देखिए यहाँ से जो न्यूरॉन आ रहे हैं that are directly entering in the posterior side of the pituitary gland. Okay, और यहाँ पे जो न्यूरॉन है that is going to spore their secretion in the hypophyseal portal system. ठीक है, यहाँ पे hypophyseal portal system है, where it is going to pour the secretion, and this is the vein which is again divided into capillaries. Isn't it? So यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी विल सी। देखिए आगे जो लोब होती है एंटीरियर लोब, यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स होते हैं। ओके, इसमें जो सेल्स हैं वो मैं यहाँ ड्रॉ कर ले रही हूँ, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे तो पीछे हमने बताया था पोस्टीरियर लोब में ये जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, and this is paraventricular. सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या सिक्रीट कर रहा है? वैसोप्रेसिन। and paraventricular nucleus is secreting oxytocin, isn't it? अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सेल्स है ना। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से आई सेड रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों आएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द रिलीजिंग हार्मोन। सपोज दिस इज द ग्रोथ हार्मोन, सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, आप हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो कैसे याद करेंगे? PMTFLAG, फ्लैक्स। पी से हो गया आपका प्रोलैक्टिन, एम से हो गया मिलेनोसाइट, मिलेनो MELANOCYT, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। देन टी से हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफ से हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए से हो गया ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, देन जी से हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन हो गया ये। फिर आपका हो गया प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या लेते हैं? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, फिर आपका आ गया
देखिए ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, ये गोनाडोट्रॉप्स है, ठीक है। दे आर गोइंग टू अफेक्ट द टेस्टिस इन मेल्स एंड योर ओवरीज इन फीमेल, ठीक है। तो ये हो गए, ये हमारे गोनाड्स होते हैं ना, तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, GnRH और GnIH, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, सो व्हाट कौन कौन से हो गए हमारे, ये हो गया, देन हमारा हो गया प्रोलैक्टिन, देन वी हैव रिटन फॉलिकल और ये, ठीक है। अब रह गया हमारा एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ACRH ACIH। ओके, ये हो गया। अब रह गया आपका TSH, थायरोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉफ इनहिबिटिंग हार्मोन। ओके, ये सारे हार्मोन्स यहाँ पे सेल्स में आ गए, ठीक है। ये जो है यहाँ से हार्मोन्स निकले, ये हाइपोथैलेमस से निकले, ये सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकले हैं। ये जो हार्मोन्स हैं इस ब्लड के थ्रू यहाँ पे आएंगे और इन सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और वी कैसे स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज दी नेक्स्ट हार्मोन। ओके, देखिए अगर रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं तो ये इन सेल्स को अपना हार्मोन रिलीज करना पड़ेगा, और इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं तो इन सेल्स को इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज गोइंग टू अफेक्ट द सोमेटोट्रॉफिक सेल्स, सोमेटोट्रॉफ्स, प्रोलैक्टिन, लैक्टोट्रॉफ्स, ये सेल्स के नाम हैं जिनको ये स्टिमुलेट करेंगे। गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग गोनाडोट्रॉफ्स, ये हो गए कॉर्टिकोट्रॉफ्स, ओके, ये हो गया आपका थायराइड वाला थायरोट्रॉफ्स। ओके, बहुत इजी है, ट्रॉफ्स ट्रॉफ्स लगाना है आपको, सेल्स के नाम है ये, ठीक है। सोमेटोट्रॉफ्स हो गया आपका जो ग्रोथ हार्मोन जो आएगा यहाँ से इस सेल्स को, सपोज दिस इज द दिस सोमेटोट्रॉफ सेल, इसको इसने स्टिमुलेट किया, ये अपने हार्मोन आगे फर्दर रिलीज करेगा, ठीक है, ये अपने ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन, अपना प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो आपके दो हार्मोन सिक्रेट होंगे, FSH एंड LH, ठीक है। फिर ये आपका हो गया कॉर्टिकोट्रॉफ सेल से, जो अगर ये एक्टिवेट हो गई तो इनसे रिलीज होगा cortisol, because it is going to affect the adrenal cortex, ओके, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, ठीक है, उसकी कॉर्टेक्स रीजन को ये अफेक्ट करेगा, वहां से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, ओके। देन दिस TRH और TIH ये थायरोट्रॉफ सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ये सेल्स सिक्रेट करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए ये जो हार्मोन्स थे ये सारे किसने सिक्रेट करे हैं, हाइपोथैलेमस ने। एज आई सेड, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है और इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है। रिलीजिंग हार्मोन की तब जरूरत पड़ती है जब हमारी बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और रिक्वायरमेंट होती है, तब ये रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, और अगर ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाता है तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सिक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ओके। ये जो सिक्रेट कर रहा है ये आपका ये वाला जो न्यूक्लियस मैंने बताया था, आर्कुलेट न्यूक्लियस सिक्रेट कर रहा है, ये ब्लड में जाएंगे और दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट दी सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी सेल्स है इनको स्टिमुलेट करेगा। अब ये सेल्स फर्दर हार्मोन सिक्रेट करेंगी, ठीक है। ये वाली ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो सेल है कॉर्टिसोल, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज द कॉर्टिसोल हार्मोन, एंड दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेंगे आपकी थायरोट्रॉफ सेल्स, ओके। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फर्दर आपके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा टू सिक्रेट T3 एंड T4, ठीक है।
T3 को सिंथेसाइज करने को बोलेगा। ये सिंथेसाइज होने जरूरी है, हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, इनको सिंथेसाइज करो और सिक्रीट करो। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप कह सकते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट नहीं करता है। सिक्रीट तो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ये न्यूरॉन्स को हम बोलेंगे न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स। ओके, ये न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि ये जो है why they are called neurosecretory neurons, because they are going to secrete the hormones in the blood. इनका जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है उसमें चला जाएगा। ठीक है, राइट, यहाँ पे ब्लड वेसल में जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस सिक्रीशन इज कॉल्ड, मींस दिस सेल इज कॉल्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। है तो ये न्यूरॉन्स ही। गेटिंग माई पॉइंट। वेयर एज एंटीरियर लोब को आप देख सकते हैं, एंटीरियर लोब में जो सिक्रीशन आ रहा है हाइपोथैलेमस से वो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स का आता है ब्लड के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वही सिक्रीट कर रहे हैं। ये सेल्स जो है दे आर गोइंग टू सिक्रीट दी हार्मोन्स, राइट? इजंट इट? इज इट क्लियर नाउ? सो लेट अस रिवाइज अगेन। आगे वाली जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की उसको बोलेंगे एडिनोहाइपोफिसिस, पीछे वाली लोब को हम बोलेंगे न्यूरोहाइपोफिसिस। आगे वाली जो लोब है उसको फर्दर डिवाइड किया है पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से सिक्रेट करेगी मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन हमारी मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ मैं, मेलेनोसाइट्स सेल्स होती हैं। कहाँ पे होती हैं? हमारी स्किन में। जैसे सपोज दिस इज, यहाँ अगर आप स्किन की लेयर्स देखेंगे तो अंदर वाली जो लेयर है बेसल लेमिना, यहाँ पे कुछ ये मेलेनोसाइट सेल है। सपोज दिस मेलेनोसाइट इज गोइंग टू सिक्रीट दी मेलानिन, यहाँ से मेलानिन सिक्रीट होगा एंड दिस मेलानिन विल मूव अप। अगर आप सन एक्सपोजर मतलब सन में खड़े हैं, सनलाइट में, तो ये बहुत ज्यादा मेलानिन सिक्रीट हो जाता है, तो आपकी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है। मेलानिन का प्रोडक्शन जो है ब्लैक पीपल, डार्क कलर के जो पीपल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है, और बट इसका सिक्रीशन इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स। ठीक है, मेलानोसाइट कितना सिक्रीट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द जीन्स, इजंट इट? गेटिंग माई पॉइंट। मेलानोसाइट आपके हेयर्स में प्रेजेंट है। हेयर्स के जो लेयर है फॉलिक अंदर की तरफ जो मेलानोसाइट सेल्स हैं इस लेयर में, ऐसे ही आपकी स्किन की जो लेयर है अंदर वाली बेसल लेमिना उसमें भी मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर गोइंग टू सिक्रीट द मेलानिन। ओके, Isn't it clear? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन आपके पीछे जो पोस्टीरियर लोब है उसमें स्टोर हो जाता है, सिक्रेट होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। ठीक है, और स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर साइड में। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, पी साइज का है, मटर के दाने जितना। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स को टारगेट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज द मास्टर ग्लैंड। ओके, इट इज रेडिश ग्रे इन कलर, इसका कलर जो रेडिश ग्रे है, और इट इज प्रेजेंट इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेला टर्सिका, लेट अस सी वेयर सेला टर्सिका इज। This see the video here, this red color portion is nothing but the sella turcica. ठीक है, आपको दिख रहा है अंदर? I'll show you again. This is the sella turcica. ओके, यहाँ पे कैविटी जो दिख रही है रेड कलर की, इसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्लेस्ड होता है। ओके, isn't it? Everything is clear till here. Now move on. This we have already seen that pituitary gland जो एडिनोहाइपोफिसिस, आगे वाली जो एंटीरियर लोब जो है ए से है, तो एडिनोहाइपोफिसिस पोस्टीरियर वाली को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफिसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफिसिस इज पार्स नर्वोसा। Now anatomy we have already seen. Now these are the hormones I have written over here. PMT, FLAG से हम याद कर सकते हैं। प्रोलैक्टिन, melanocyte, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, ACTH, adenocorticotrophic hormone, and then the growth hormone. ठीक है, now let us see the function. प्रोलैक्टिन का काम है to make milk. ठीक है, production of milk.
or we can say formation of milk. फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, तो प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क को बनाना. ओके, मेलानोसाइट secrete the melanin which is present in your skin of your head or your this epidermis जो होती है, अंदर वाली जो लेयर है उसमें मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. Thyroid stimulating hormone TSH hormone is going to stimulate your thyroid gland to secrete T3 and T4. Right? Follicle stimulating hormone और luteinizing hormone, ये दोनों जो hormones हैं, these are the gonado, ये दोनों gonadotrophs होते हैं. ओके, follicle stimulating hormone जो होता है in male, it helps in sperm formation, यानी कि spermatogenesis में help करेगा. And in female, it is going to help in the growth of ovarian follicles. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनता है. ठीक है, ये फॉलिकल की लेयर है, मल्टी लेयर हो जाती है, फिर आपका टर्शरी बनता है जिसमें एंट्रम आ जाता है. ठीक है, फिर ग्रेफियन बनता है जो सबसे मैच्योर, जिसमें एंट्रम कैविटी बहुत बड़ी हो जाएगी. ठीक है, ये जो मैच्योरेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है मेल में आप अगर टेस्टिस का आप सेक्शन काटेंगे, सपोज दिस इज द टेस्टिस एंड so if you cut the section of testis you will found many seminiferous tubules. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे, यहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे, ये seminiferous tubules होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो बीच में स्पेस है उसमें आपके इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है. यहाँ पे इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल्स भी बोलते हैं. ओके, लेडिक सेल्स, they are going to secrete the next hormone, that is testosterone. So this is the function of Leydig cells. तो ये जो होते हैं luteinizing hormone Leydig cells पे इफेक्ट करते हैं to secrete the hormone, male sex hormone, that is testosterone, which is very important for the maleness. ठीक है, आपकी beard, mustache, ये सब जो masculine जो characteristic होती है उसमें बहुत useful होता है. Right? So it is going to affect the Leydig cells. Okay, Leydig cells को affect करता है males में, and in females it is helpful in ovulation. जब हमने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा पीक पे होता है LH हार्मोन पीक पे होता है, तभी ये जो यहाँ से जो मोस्ट मैच्योर ओवम होगा वो बाहर आ जाएगा. ओके, मोस्ट मैच्योर फॉलिकल से ओवम विल कम आउट. सो दिस हैपेंस व्हेन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज एट द पीक. ओके, सो इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन. इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, ये जो बचे हुए फॉलिकल सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? येलो कलर की बॉडी जिसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया. ACTH, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के दो एरिया होते हैं, ये कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला हो गया मेडुला. ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स एरिया को अफेक्ट करता है टू सिक्रीट द कॉर्टिसोल हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन, देखिए ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट हो जाता है तो पर्सन कैन बी जिजेंटिज्म बोलते हैं. छोटा रह जाता है, कम हार्मोन सिक्रेट होता है, देन वी कॉल इट ड्वार्फिज्म. ओके, छोटा रह जाता है. जिजेंटिज्म में बहुत लंबा हो जाता है. ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो पर्सन कैन बी वेरी टॉल. ठीक है, टॉलनेस के साथ साथ पर्सन बॉडी में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं. दिस ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा एक्सेस में सिक्रेट होता है तो इट विल लीड टू एक्रोमेगैली. ठीक है, बोन्स बहुत ज्यादा एनलार्ज होती हैं, आपकी फेस की बोन्स इतना ब्रॉड फेस हो जाएगा, हाथ की जो फिंगर्स वगैरह हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी. तो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्रोमेगैली. ओके, सो दिस ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो लीड्स टू ड्वार्फिज्म एज वेल. अगर ये कम सिक्रेट होगा तो जो भी पर्सन है वो छोटा रह जाएगा हाइट में. राइट, सो दीज आर द हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ वो हमने जो हार्मोन्स देखे हैं वो सारे हार्मोन्स कौन से थे? एंटीरियर साइड के थे,
These are two hormones secreted by the posterior side of the pituitary gland. पीछे वाली साइड से secrete हो रहे हैं. secrete कौन कर रहा है इनको? हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन्स है वो secrete कर रहे हैं. ठीक है. ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हेल्प इन लेबर. ठीक है, यानी कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग फुल टर्म, यानी कि जब बेबी पूरा डेवलप हो चुका है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यू टू दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ठीक है, तो इट इज हेल्पफुल इन लेबर में हेल्प करता है एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इजेक्शन ऑफ मिल्क. फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में आपका प्रोलैक्टिन हेल्प कर रहा है, वो बनाता है, लेकिन इजेक्शन में जो है ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है. देन योर वैसोप्रेसिन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एडीएच हार्मोन बोलते हैं इसको. ठीक है, एडीएच ये एंटी है यूरिन के, यानी कि यूरिन ज्यादा सीक्रेट हो जाती है उसके लिए एंटी होता है ठीक है, एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस बोलते हैं, यानी कि वाटर लॉस के ये एंटी है, उल्टा काम करेगा, यानी कि बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस नहीं हो जाए, इसलिए ये हार्मोन वैसोप्रेसिन इज वेरी वेरी हेल्पफुल. यानी कि अगर आप बहुत कम पानी किसी दिन पिए होते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है तो आपकी बॉडी से, यानी कि इट अफेक्ट्स योर किडनी. ओके, किडनी में आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें से ये जो वाटर है इट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, ये आपने देखा होगा स्ट्रक्चर. दिस इज द नेफ्रॉन, पीसीटी. ठीक है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले एंड देन देयर इज अ डीसीटी. राइट, सो इन ट्यूब्यूल से क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, अगेन एब्जॉर्ब इन द ब्लड. तो आपकी बॉडी से कंसंट्रेटेड यूरिन जाता है, डाइल्यूट यूरिन नहीं जाता है. कंसंट्रेटेड यूरिन विल excreted out. So it is very very helpful in this case when there is a water loss, right? So this is all about today's topic. Thank you for watching. Hope you like this video. Please give your valuable feedback and subscribe to my channel. Thank you.